Hello friends, my name is Sujit Tripathi and welcome to my YouTube channel Mission Maths Studio. I hope all of you are doing well at home and your houses बिल्कुल फिट हैं, फाइन हैं और कोविड के जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ऑलरेडी वी हैव डन 2 लेक्चर्स ऑन नंबर सिस्टम्स। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं एक तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए और इस लेक्चर में हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं। ऑपरेशंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स like how to add, multiply, subtract or divide rational and irrational numbers। आज हम ये करने वाले हैं। Okay, so let's start with some useful identities। Okay, get ready, come on। Useful identities: when you multiply two irrational numbers, root a into root b, then it would be root a into b. Okay, this is multiplication. Now next is division. Root a divided by root b gives you root a upon b. Now the third one, if you are given root a plus root b times root a minus root b, then you obtain a minus b. As you know, a square minus b square, so using that identity we can write a minus b. Okay, now what is next? If you have root a plus b times root a minus root b, something like this term, then what to do? You can multiply them like this. Root a into root a is root a minus root ab plus root a times b and minus b root b. Now next, root a plus or minus root b whole square is a plus or minus b, sorry, it's always plus b, and plus or minus 2 root ab. So these are the some useful identities to use when you are multiplying rational and irrational numbers. And as we discussed earlier, that the multiplication and division of rational and irrational numbers may or may not be rational. Okay, अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। ओके, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स on this. Suppose if you are given multiply root 2 and root 3, so how to multiply them? Use this identity. You can multiply 2 and 3 and so answer is root 6. Okay friends, this way you can multiply. Now divide. Suppose you are given root 15 divided by root 3, so you can divide like this. अंडर सेम रूट लिख सकते हो रूट 15 अपॉन 3, 3 से 15 यहाँ पे डिविजिबल है एंड आंसर इज रूट 5. सो दिस इज द आंसर. सिमिलर वे में और भी कई सारे हम एग्जांपल्स लेते हैं, आइए देखते हैं. ओके, सपोज यू हैव 2 root 10 divided by root 5. So you can write like this, 2 root 10 divided by root 5. So now 2 root 10
upon 5. You can write like this. They are divisible. So answer is 2 root 2. This is the answer. Okay. आइए कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं. Suppose you are given to multiply 2 plus root 3 into 3 plus root 6. So how to multiply them? It's very easy formula. You can do like this. Just write like, first you multiply 2 times whole bracket and root 3 times whole bracket. So you can write like this, 2 times second bracket plus root 3 times second bracket. You can multiply like this. First you multiply the whole bracket with first term, and then you multiply the whole bracket with second term. Now you multiply 2 into 3. 2 3s are 6, plus, because they are the like terms, always you remember you can multiply or divide the like terms only. Like 2 times 3 is 6. Now 2 times root 6. So 2 is a rational number, root 6 is an irrational number. So you can't multiply them. So you can write like this, 2 into root 6 लिख लेंगे हम. ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो रूट के बाहर है और रूट 6 जो है 6 वो रूट के अंदर है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे 2 इंटू रूट 6. अब इस रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर से एक एक करके. पहले 3 से करेंगे, फिर रूट 6 से करेंगे. तो रूट 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है और 3 एक रैशनल नंबर है, तो ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इनको हम 3 रूट 3 लिख सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 रूट 3. अब रूट 3 को जब रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हमने डिस्कस किया था रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी. सो वी कैन मल्टीप्लाई रूट 3 एंड रूट 6, देन वी ऑब्टेन रूट 3 6 जा 18 लाइक दिस. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी टर्म्स को पहले लिखते हैं. 3 रूट 3 और 3 6 जा ये 18 हो गया, तो 18 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं. वी कैन फैक्टराइज 18 टू राइट देम इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब रूट 18 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जब फैक्टराइज करते हो 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो 3 का एक पेयर बन रहा है. तो अगर 3 का एक पेयर बन रहा है दैट मीन्स कि 3 रूट के बाहर आएगा, और जो नंबर जिस फैक्टर का पेयर नहीं बन रहा है उसको हम रूट के अंदर ही लिखेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी 3 रूट 2. अब यहाँ देख सकते हैं कि क्या कोई रूट जो है वो लाइक रूट है. लाइक रूट्स का मतलब जैसे ये रूट 2 आ रहा है, तो क्या कहीं और भी रूट 2 आ रहा है? नो, कहीं नहीं आ रहा है. यहाँ क्या रूट 3 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या और भी कहीं रूट 3 आ रहा है? नो, नहीं आ रहा है. रूट 6 आ रहा है, क्या कहीं रूट 6 की टर्म आ रही है? नहीं आ रही है. सो ऑल दीज टर्म्स आर डिफरेंट. तो इसको हम मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट नाउ. ओके, let's do some more examples to clarify your concept. आइए देखते हैं. सपोज कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5. इंटू 2 प्लस रूट 5. अब ये ट्राई करना है तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो जो एग्जांपल जैसे मैंने कराया था सेम वैसे ही आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो यू प्लीज़ ट्राई एट होम. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जांपल्स. रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर. सपोज यू आर गिवन टू सॉल्व रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर. देन हाउ टू डू? तो इसको हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं. अभी हमने आइडेंटिटी डिस्कस किया था ए प्लस बी होल स्क्वायर की, वो हम यूज़ कर सकते हैं.
और या फिर जो अभी रिसेंटली हमने एग्जांपल किया था उस एग्जांपल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाउ? तो एक तो तरीका ये है कि पहले हमने इसको हमने ऐसे लिख दिया, अभी हमने आइडेंटिटी करी थी, मैं आइडेंटिटी एक बार दोबारा लिख देता हूँ, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, राइट। ये यूज कर सकते हैं। यहाँ ए की वैल्यू रूट 3 हो गई है और बी की वैल्यू क्या हो गई है, रूट 7 हो गई है, तो हम इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ए के प्लेस पे रूट 3 अगर डालते हो तो ये अब हमको क्या देगा, ओनली 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और 2 रूट क्या आएगा 3 इंटू 7, तो हमें मिला क्या, दे आर द लाइक टर्म्स सो कैन बी एडेड, 3 + 7 gives 10 and 3 7s are 21, so you obtain 10 + 2 √21। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि हम ये 10 में 2 को ऐड नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि ये 2 जो है ये √21 के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई में है 2 इसके साथ, तो ये 2 10 में ऐड नहीं हो सकता है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक फ्रेंड्स, ओके, रिमेंबर। गुड, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। इस पे और भी क्वेश्चंस घर पे खुद से ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ, उनको खुद से घर पे प्रैक्टिस करें। √2 प्लस √3 का स्क्वायर, इसको घर पे खुद से ट्राई करें। √5 माइनस √3 होल स्क्वायर, इसको भी घर पे खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चंस घर पे खुद से ट्राई कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, गुड। घर पे प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर मैं करा दूंगा, बट प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सब कुछ ये यूजलेस हो जाएगा, ओके। नाउ अब सपोज कि हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाएं, जैसे 2 + 3 √5 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस 2 √3 से, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यूज़ द सेम रूल वी डिस्कस्ड अर्लियर। कैसे? पहले 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 √5 को। तो कैसे लिखना चाहिए हमें, सबसे पहले 2 इंटू सेम ब्रैकेट 5 माइनस 2 √3, फिर 3 √5 इंटू सेम ब्रैकेट। ये बहुत ही मतलब इजी वे है, ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे मिस्टेक नहीं होगी, ओके। अब 2 को क्या करो, अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, पहले 5 से करोगे फिर इससे करोगे, 2 5s are 10। अब यहाँ देखो ये 2 जो है जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की लाइक टर्म ये रैशनल है, तो यहाँ इन दोनों में रैशनल कौन है, रैशनल 2 है। जो रूट के अंदर आ रहा है वो रैशनल नहीं है, तो रूट से मल्टीप्लाई होगा, और जो नंबर रूट के बाहर है मतलब रैशनल है वो रैशनल से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2s are 4, 2 √3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सो √3 एज इट इज, प्लस अब 3 √5 को 5 से करोगे तो यहाँ भी सेम थिंग है, यहाँ पे 3 जो है वो रैशनल है, तो रैशनल नंबर रैशनल से ही मल्टीप्लाई होगा, और रूट एज इट इज़ हम कंटिन्यू करेंगे। 3 5s are 15 और √5 माइनस, अब यहाँ देखो 3 √5 को मल्टीप्लाई करना है 2 √3 से, तो रैशनल जो है वो रैशनल से मल्टीप्लाई होगा और जो रूट है वो रूट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2s are 6 एंड √5 3s are √15। अब यहाँ भी चेक करें कि क्या कोई लाइक टर्म्स हैं, आर देयर एनी लाइक टर्म्स, बिकॉज वी कैन सिंप्लीफाई ओनली द लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी क्लियर दैट देयर आर ऑल दीज रूट्स एंड ऑल ऑफ देम आर अनलाइक, सो वी कांट सिंप्लीफाई फर्दर, सो दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, okay friends। so I have given so many examples to you and you can understand now
I hope your concept is very clear. You can practice more questions from your textbook. This is basically from 9th standard, okay, and very first chapter was number system. So you can try similar questions all given in your textbook. सबको हम try कर सकते हैं. Okay friends, now अब ये हम कर चुके हैं, अब इतना तो सफिशियंट है आई गेस. अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन. हम कभी भी रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? अगर हमें एक पी बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन दे दी जाए जिसका डिनोमिनेटर जो है वो रूट के फॉर्म में है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो मैथ्स ये कहता है कि देयर इज़ नो स्क्वायर रूट टर्म अलाउड इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. वी नीड टू रैशनलाइज दैट. अगर रूट दिया हुआ डिनोमिनेटर में तो उसे हमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत होगी. ओके, कभी भी. तो ये बेसिक्स हैं रूट के. रैशनलाइजेशन फर्स्ट टाइम सीख रहे हो फ्रेंड्स, अच्छे से सीख लेना, क्योंकि बहुत काम आएगा आगे की क्लासेस में भी. ये 10th 11th 12th और लाइफ में बहुत काम आने वाला है. ओके, रैशनलाइजेशन देखें, दो तरह से हम सीखेंगे, एक टाइप 1 और एक टाइप 2. टाइप 1 ये होगा कि जब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आएगी रूट की, तो उसको हम रैशनलाइज कैसे करते हैं. ये बहुत आसान है, तो आइए देखते हैं. हाय फ्रेंड्स, मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर सुजीत त्रिपाठी. क्या आपको मैथ्स बहुत मुश्किल लगती है? तो अब मैथ्स सीखना हुआ बेहद आसान. अभी सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स और हो जाए बेफिक्र. रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन में हम पहले टाइप 1 डिस्कस करेंगे. टाइप 1 क्या कहता है कि जब केवल डिनोमिनेटर में सिंगल रूट की टर्म आए. फॉर एग्जांपल 1/√2. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ रही है और वो रूट में आ रही है, तो इसको हम रैशनलाइज कैसे करें? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और न्यूमरेटर में ज़रूरी नहीं है कि 1 आएगा. देयर कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है न्यूमरेटर में. तो ऐसे केस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेम रूट वाली टर्म से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं. जब किसी रूट को उसी रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट डिलीट हो जाती है. तो यहाँ अगर √2 है तो हम √2 से केवल रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. √2 से अगर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी, मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा. ऐसा नहीं होगा कि हम केवल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा. ओके, तो √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मिलेगा क्या, 1 इंटू √2 ही आएगा. और √2 इंटू √2 जब करोगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि रूट को जब दूसरे रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इंटू 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा. तो 4 की रूट वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है. तो डायरेक्ट याद रखें कि जब सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट डिलीट हो जाती है बेसिकली. तो √2 इंटू √2 करोगे तो वो 2 बन जाएगा. और अब देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर से रूट डिलीट हो गया. सो नाउ दिस इज़ रैशनलाइज्ड. यहाँ डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, और जैसे ही डिनोमिनेटर से रूट हट गया मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज कि हमें दे दिया गया 3/2√6. अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म आ रही है और रूट जो है वो 6 है, तो हमें केवल रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है. रूट के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है. तो दैट मीन्स कि वी नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो विद √6 ओनली. √6 से मल्टीप्लाई करेंगे. याद रहे केवल रूट वाली टर्म पे फोकस करना होता है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2√6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो गलत तो नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा काम हमारा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं.
तो याद रहे केवल रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 2√6 है, हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल √6 से ही करेंगे। तो अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल है, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे हम 3√6। अब नीचे देखो, 2 इंटू √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अभी मैंने क्या समझाया था कि जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी रूट को सेम रूट से जब मल्टीप्लाई करते हो तो रूट डिलीट हो जाती है और वो नंबर आ जाता है। तो √6 इंटू √6 करोगे तो रूट हट के केवल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो ये रैशनलाइज तो हो चुका है, बट ये फ्रैक्शन जो है वो मोर सिंप्लीफिकेबल है, सिंप्लीफाई हो सकती है। यहाँ कौन किससे कट होगा, 3 से ये 6 कैंसिल हो सकता है, तो कर देते हैं 3 2 जा 6। अब हमें मिला क्या, न्यूमरेटर में √6 और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ भी डिनोमिनेटर से रूट डिलीट हो चुका है। सो दिस इज़ दी आंसर, यानी ये फ्रैक्शन जो है वो रैशनलाइज हो चुकी है। तो ये टाइप 1 पे हमने 2 एग्जांपल्स किए। आई होप कि समझ में आ चुका है, और अगर समझ में चीज़ें अच्छे से आ रही हैं तो बिल्कुल मैथ्स को एंजॉय करके सीखें, और वीडियो को लास्ट में एंड तक ज़रूर देखें, और एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे से हम करा भी पाते हैं आपको। ओके, अब हम इसका टाइप 2 करेंगे। हमने टाइप 1 कर लिया है। अब टाइप 2 में क्या होता है कि टाइप 2 में डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स आएंगी। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स, सपोज हम 2 टर्म्स लेके देखते हैं, अगर 2 टर्म्स आती हैं जिसमें एक टर्म जो होगी वो विदाउट रूट होगी, रूट से इंडिपेंडेंट होगी, और जो दूसरी टर्म आएगी वो रूट में आएगी। तो आइए देखते हैं। सपोज यू आर गिवन 2/3 + √2। अब यहाँ देख सकते हैं ये हम टाइप 2 कर रहे हैं। टाइप 2 ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आएंगी, या 2 से ज़्यादा भी आ सकती हैं। उनमें से कुछ टर्म्स विदाउट रूट रहेंगी, रूट से इंडिपेंडेंट, और कुछ रूट के अंदर आएंगी। अब यहाँ पे रूट के अंदर √2 आ रहा है, तो ये बायनॉमियल है। मोस्टली क्वेश्चंस बायनॉमियल के ही मिलते हैं, मतलब 2 टर्म्स वाले ही मिलते हैं। ऐसे केसेस में करते क्या हो, तो हम इसको जब रैशनलाइज करने जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जो बीच का साइन होता है, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो नंबर सेम रहेंगे, केवल बीच का साइन हमें क्या करना है, डिफरेंट लेना है। मतलब ये 3 + √2 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो 3 - √2 है वो 3 + √2 का कंजुगेट कहलाता है। कंजुगेट में हम करते क्या हैं, केवल बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 3 + √2 का कंजुगेट क्या होगा, 3 - √2। अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करते। गॉट इट, हमेशा साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखें। ओके, अब देखो तो न्यूमरेटर जो है ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एज इट इज़ रहने दो, और अपना फोकस पूरी तरह से डिनोमिनेटर पे रखें। सेकेंड टाइप में जब भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने जाते हो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होती है, a + b × a - b इज़ a² - b²। हम ये यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है क्या, मैं दोबारा लिख देता हूँ, a + b × a - b इज़ a² - b²। ये हमेशा सेकेंड टाइप में ये आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में हमेशा अप्लीकेबल है, हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और माइनस क्या आएगा, √2 का स्क्वायर आएगा। तो ये सॉल्व नहीं करना है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ कंटिन्यू करें। हाँ, डिनोमिनेटर में ज़रूर होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर अभी हमने डिस्कस किया पीछे कि किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हो तो रूट डिलीट हो जाता है। तो √2 का स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा और केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें मिला क्या, 2 × 3 - √2 एंड 9 - 2 क्या आ गया, 7 आ गया। तो देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो रूट से इंडिपेंडेंट हो चुका है, नीचे से रूट डिलीट हो चुका है डिनोमिनेटर से, मतलब दिस इज़ द रैशनलाइज्ड फॉर्म। यहाँ पे डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। तो
बड़ा सिंपल सा है। कभी भी सेकेंड टाइप जब भी आता है तो इसमें हम ऐसे ही करेंगे, जो भी अगर प्लस साइन आ रहा है तो माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और ऐसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हम आंसर ले सकते हैं। ओके, तो फिलहाल नाइन्थ का जो सिलेबस है उसमें दो ही तरह की रैशनलाइजेशन है। एक तो जब सिंगल टर्म आएगी डिनोमिनेटर में, जो कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, बहुत इजी था। जो सेकंड टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें। मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, और या फिर उसके लिए एक काम कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, इनको घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। 5 + √3, इसको रैशनलाइज करें। √7 - 2, इसको रैशनलाइज करें। अपॉन √11 - √2, इसको रैशनलाइज करें। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और घर पे प्रैक्टिस करके और बड़े आराम से एक्सपर्ट हो सकते हैं इन सभी टॉपिक्स में। तो इनको बार बार घर पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ही हम अच्छा कर सकते हैं। ओके, एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। रैशनलाइजेशन जब ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी है अब फाइंड करना वैल्यू। सपोज़ हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू, एक ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो हम इनको सॉल्व कैसे करें। तो रैशनलाइजेशन हमें आती है तो फिर नो वरीज, ओके, वी कैन सॉल्व इट इजीली। लुक हाउ, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो रूट वाली टर्म है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो हम राइट जो टर्म है राइट साइड पे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि रैशनलाइज करेंगे कैसे। ये जो है हम देख रहे हैं कि देयर आर 2 टर्म्स इन द डिनोमिनेटर, 3 + 2√5। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका कंजुगेट होगा क्या, तो डिनोमिनेटर का जब हम कंजुगेट लेते हैं तो उसमें साइन चेंज कर देते हैं। तो ये अगर 3 + 2√5 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 - 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लुक, पहले हमने लिख लिया 3 - √5 अपॉन 3 + 2√5। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो हम माइनस लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। अब रैशनलाइजेशन करने के लिए देखो, यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो 1 2 3 4 जो रूल है उसी से करेंगे। पहले 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 3 × 3 - 2√5, फिर -√5 जो सेकेंड टर्म है उसको भी सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सॉल्व्ड यूजिंग आइडेंटिटी a² - b²। तो यहाँ पे हमेशा a² - b² ही अप्लाई होने वाला है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -2√5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 3 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों टर्म से, तो 3 3 9 आएगा, माइनस, अब 3 को जब मल्टीप्लाई करना है तो हम रैशनल नंबर से, जो रूट के बाहर नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से नहीं करेंगे। तो 3 2 6 √5, यहाँ √5 × 3 करोगे तो 3√5 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। √5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से नहीं होगा। तो जब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि लाइक रूट्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट डिलीट हो जाता है, मीन्स √5 × √5 बिकम 5 ओनली। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a² - b², 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
और 2√5 का, तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे और √5 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, और √5 का स्क्वायर जब करोगे तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब इसमें लाइक टर्म्स देखें, न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स क्या क्या आ रही हैं। ये 2 5 10 बन जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, 9 माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 6√5 माइनस 3√5, तो -6 और -3 जब सेम साइन होता है तो हम उनको ऐड कर लेते हैं और वही साइन हम यूज़ भी करते हैं। तो -6 में जब -3 ऐड करोगे तो -9√5 हो जाएगा, और ये 2 5 10 आ गया, और अपॉन में क्या है, 9 माइनस 4 5 20, तो हमें ये देगा क्या, 9 और 10 जो है वो लाइक टर्म्स हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। 9 + 10 इज़ 19 एंड 19 माइनस 9√5 अपॉन में जो 9 माइनस 20 हमने किया तो हमें मिल गया -11। अब ये देखो, ये रैशनलाइज हो चुका है, डिनोमिनेटर से रूट डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में अगर 2 टर्म्स हैं तो 2 सेपरेट टर्म्स होंगी, मिलेंगी डिवाइड करके। तो पहले 9 को जब डिवाइड करोगे -11 से तो ये आ जाएगा -9/11, और ये माइनस को जब डिवाइड करोगे -9√5 को -11 से, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। तो हमें मिला क्या, -19/11 प्लस 9√5/11। अब देखें ज़रा कि लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्म जो आ रही थी वो क्या थी, a√5 माइनस 19/11, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे a√5 माइनस 19/11। अब जो लाइक टर्म्स हैं दोनों तरफ, उनको कंपेयर करते हैं। अब देख सकते हैं जो रूट के, जिसके साथ रूट आ रही होगी टर्म, वो लाइक टर्म आपस में हो जाएगी। जैसे इसमें रूट आ रही है 9√5/11, तो ये वाली जो टर्म है ये लाइक टर्म होगी किसकी, रूट वाले टर्म की। इसमें भी रूट आ रहा है, इसमें भी रूट आ रहा है, तो हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे, इनको आपस में हम इक्वल लिख सकते हैं। तो जब हम लिखेंगे a√5 इक्वल प्लस 9√5/11, तो अब यहाँ क्या होगा, ये जो √5 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ गई, 9/11। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये 19/11 को हमने क्यों नहीं कंपेयर किया इस वाले टर्म को, क्योंकि इसके साथ रूट नहीं आ रहा था। वेरिएबल के साथ जो रूट आएगी, जैसे यहाँ a के साथ √5 है, तो वो रूट इधर भी आएगा, ज़रूर आएगा, किसी न किसी एक टर्म के साथ ज़रूर आएगा। हम रूट वाली टर्म को रूट वाली टर्म से ही कंपेयर करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट। सो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ओके, एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि रैशनलाइजेशन हमें आना चाहिए। रैशनलाइजेशन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल और भी लेने वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन है 5 + a - 6√3, और ये हमारा इक्वल किसके है, तो 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में देखें, हमें b की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल वाली टर्म आ रही है वो लेफ़्ट साइड पे आ रही है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम राइट हैंड को सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने लिख लिया 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3
अब इसको जब रैशनलाइज करने जाएंगे तो डिनोमिनेटर को ध्यान देते हैं। डिनोमिनेटर 7 + 4√3 है, तो हम 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 7 - 4√3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी। तो हमें पता है हाँ, न्यूमरेटर तो वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। पहले 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 7 - 4√3 प्लस 2√3 × 7 - 4√3। और डिनोमिनेटर जैसा कि मैंने बताया कि ऑलवेज डिनोमिनेटर पे a² - b² वाली आइडेंटिटी अप्लीकेबल होती है। सो लेट्स अप्लाई a² - b²। 7², then we obtain 7² - 4√3²। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20। रूट से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। 2√3 को 7 से करोगे तो 2 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 रैशनल है, 7 रैशनल है। रूट से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, रूट से रूट ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अब 2√3 को करोगे तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, और √3 को √3 से करोगे तो रूट डिलीट हो जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ। 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसमें भी देखें कुछ लाइक टर्म्स आ चुकी हैं। ये √3 वाली टर्म आपस में लाइक टर्म है, और ये 35 और ये 8 3 = 24, ये आपस में लाइक टर्म है। तो इनको हम एक साथ लिख देते हैं, 8 3 = 24। और ये देखें, ये -20√3 है, और ये 14√3 है, +14√3 है। तो अपोजिट साइन कभी भी आपस में ऐड नहीं होते हैं, वो सबट्रैक्ट होते हैं। ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करके लिखते हैं, और जो ग्रेटर वैल्यू होती है साइन भी उसी का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ 20 और 14 में 20 ग्रेटर है, 20 का साइन माइनस है, तो इसलिए हम माइनस लिखेंगे। और -20 + 14 अगर करोगे तो 20 - 14 कर दो, 6 आ गया, तो -6 और √3 भी आएगा। ओके, तो ये न्यूमरेटर है हमारा, और डिनोमिनेटर क्या आएगा, 49 - 16 3 = 48 आएगा। तो 49 - 48 ये 1 हो जाएगा। 35 में से 24 माइनस करोगे तो 11 आएगा, -6 √3, और अपान में 1 आ गया। तो हमें मिल क्या गया, 11 - 6 √3। ये देखो, ये फ्रैक्शन रैशनलाइज हो चुकी है, और अब बहुत ईजी है। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करना है a - -6 √3 से। तो जो रूट वाली टर्म होगी उसको रूट वाली टर्म से हम कंपेयर करेंगे, और जो विदाउट रूट वाली टर्म होती है उसको विदाउट रूट वाली टर्म से कंपेयर करेंगे। तो 6 √3 जो आ रहा है वो इससे कंपेयर करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसका मतलब जो ये साथ में टर्म आ रही है 11 आ रही है, वो a की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज 11, दिस इज द आंसर। तो हमने 2 क्वेश्चंस किए अभी, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो NCERT की जो एग्जाम्पलर बुक है, एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो उनको ज़रूर ट्राई करें। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, उनको घरों पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और परफेक्शन अपने अंदर ला सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस फटाफट नोट करें। √2 + √3, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड भी कर सकते हैं। 3√2 - 2√3, और दिस इक्वल्स 2 - b√6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो एक क्वेश्चन मैंने ये दिया है, इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके इसका राइट आंसर मुझे ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू।